ایک دن کا وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے بچوں کے عالمی دن پر اپنے عہدے کا چارج طالب علم کو سونپا۔ طالب علم ابو ذر وزیر تعلیم کی سرکاری گاڑی پر مکمل پروٹوکول کے ساتھ دفتر داخل۔ محکمہ تعلیم کے سینئر آفیسر نے ننھے وزیر تعلیم کو خوش آمدید کہا۔ ننھے وزیر تعلیم نے اجلاسوں کی صدارت کی۔ ننھے وزیر تعلیم ابو ذر نے ہارڈ شپ ٹرانسفر راؤنڈ جلد از جلد کھولنے کی ہدایت بھی جاری کر دی۔ میل کینڈیڈیٹ جو ہمارے ٹوٹل اپیئر ہوئے تھے وہ ہیں 31,978 اور ان کی جو پاسنگ پرسنٹیج ہے دیٹ از 38.48%. ٹھیک ہے جی. اور فیمیل کینڈیڈیٹ جو ہمارے پاس اپیئر ہوئے ہیں دے آر 22,778 اور فیمیل کی پرسنٹیج جو ہے وہ 55.17 ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچیوں کی جو پرسنٹیج ہے دیٹ از فار بیٹر ایز کمپیریزن ود کمپیریزن ٹو دا میل. اور دوسری جو ہمارے پاس جو اسٹیٹ ہے وہ ہے سائنس اور آرٹس کی. سائنس میں زیادہ بچے اپیئر ہوئے ہیں. ٹوٹل بچے 40,147 بچے سائنس میں اپیئر ہوئے ہیں جی. اور ان میں جو بچوں کی پاس کی پرسنٹیج ہے دیٹ از 45.82. اور آرٹس گروپ میں ہمارے پاس جو بچے اپیئر ہوئے ہیں وہ ہیں 14,609 اور آرٹس میں جو پرسنٹیج پاس ہونے کی ہے وہ 44.34% ہے. میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا. سیکنڈ اینول میں بھی 50% سے زائد بچے فیل. امتحانات میں کامیابی کا تناسب 45% سے زائد رہا. 57,756 امیدواروں نے امتحان دیے. 24,873 اسٹوڈنٹس نے. موبائل فون استعمال نہیں کر سکیں گے. پابندی کا اطلاق تمام نجی اور سرکاری اسکولوں پر ہوگا. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کے سربراہان کو ہدایات جاری کر دیں. مراسلے میں لکھا گیا کہ فوری طور پر اسکولوں میں موبائل استعمال پر پابندی پر عمل درآمد کروایا جائے. طلباء کو ہم نصابی سرگرمیوں میں شرکت کی ترغیب دیں. پنجاب اسمبلی میں پاس ہونے والی قرارداد کی روشنی میں مراسلہ جاری. دنیا بھر میں آج یوم اطفال منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد بچوں کی بہترین پرورش کے لیے والدین میں شعور بیدار کرنا ہے تاکہ بچے مستقبل میں معاشرے کے مفید شہری بن سکیں. معصوم بچوں سے مشقت کی حوصلہ شکنی کرنا اور چائلڈ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف مؤثر کارروائی ناگزیر ہے. جہاں بچے محفوظ ہوں وہاں مستقبل روشن ہوتا ہے. بچوں کی صحت اور اعلیٰ تعلیم ہماری پہلی ترجیح میں شامل ہے. چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام سے ہزاروں بچوں کی زندگیاں بچائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بچوں کے عالمی دن پر پیغام بولیں. پنجاب حکومت کا ہر قدم بچوں کی بھلائی، حفاظت اور خوشیوں کے لیے ہے. چائلڈ لیبر کی روک تھام کے لیے سخت کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. بچوں کے خلاف تشدد اور بھیانک جرائم کا خاتمہ یقینی بنایا جا رہا ہے. پنجاب حکومت کا ہر قدم بچوں کی تعلیم، تحفظ اور فلاح کی سمت اٹھ رہا ہے. مریم نواز کی حکومت سے ریکارڈ تعلیمی اصلاحات کی ہیں. بچوں کے محفوظ اور روشن مستقبل کے لیے عملی جدوجہد کر رہے ہیں. وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا بچوں کے عالمی دن پر پیغام. چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کہتی ہیں بڑوں کی طرح بچے بھی توجہ اور عزت کے مستحق ہیں. بچے ہمارے قوم کا مستقبل ہیں. ہمیں چاہیے کہ بچوں کے بارے آواز اٹھائیں اور ان کے مسائل پر بات کریں. یہ دن منانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے بچے بھی وہی توجہ، اٹینشن، اہمیت، امپورٹنس ڈیزرو کرتے ہیں جو ایک اڈلٹ کرتا ہے، جو کہ ہم کرتے ہیں خود. یہ بچے وہ مارجنلائز کمیونٹی ہے اور موسٹ ولنریبل، سب سے زیادہ ولنریبل سیگمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا، جو کہ اپنی آواز خود نہیں اٹھا سکتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، ان کے بارے میں بات کریں. یہ بات کریں کہ بچے کون کون سے مسائل سے گزر رہے ہیں، کیا کیا چائلڈ پروٹیکشن ایشوز ہیں اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اٹس امپورٹنٹ کہ والدین اپنے بچوں کو توجہ دیں، اٹینشن دیں، ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، مانیٹر کریں، کیونکہ آج کل سب سے بڑی جو ایشو آ رہا ہے وہ ہے آن لائن چائلڈ ابیوز. تو اس سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں.
बच्चों के आलमी दिन पर गवर्नमेंट सुलेमानिया जूनियर मॉडल स्कूल समनाबाद में तकरीब। डीजी फूड अथॉरिटी ने बच्चों के साथ केक काटा और 480 कैलोरी से भरपूर खाना तकसीम किया। आसिम जावेद बोले, दिसंबर छुट्टियों के बाद रावलपिंडी और फैसलाबाद में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया जाएगा। पाकिस्तान में बच्चों की सेहत के हवाले से एक मखलूत तस्वीर सामने आती है। हर बच्चे का बुनियादी हक है कि इसे महफूज, साफ और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक मिले। पंजाब हुकूमत का मेहनत कशों के लिए बड़ा इक़दाम। मैरिज ग्रांट और डेथ ग्रांट में बड़ा इजाफा कर दिया गया। मेहनत कशों के बच्चों की शादी की ग्रांट में 2 लाख का इजाफा 6 लाख रुपए कर दी गई। वज़ीर लेबर इंशाअल्लाह भट्ट कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर डेथ ग्रांट को 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। पंजाब के मेहनत कशों के लिए इकदाम कर रहे हैं। मेहनत कशों को मरीम नवाज राशन कार्ड से माहाना 3000 सब्सिडी दी जा रही है। नई लेबर कॉलोनियां बना रहे हैं। कच्चे के डाकुओं से लड़ने के लिए जदीद बख्तरबंद गाड़ियां खरीदने का फैसला। रहीम यार खान और राजनपुर पुलिस के लिए 4 बख्तरबंद गाड़ियां खरीदी जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने बख्तरबंद गाड़ियों की खरीदारी के लिए 1 अरब रुपए के फंड जारी किए। आज ही पंजाब की लॉजिस्टिक ब्रांच गाड़ियों की खरीदारी करेगी। काना के इलाके से खातून के मुबैना अगवा के केस पर समाअत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का डीआईजी इन्वेस्टिगेशन पर बरहमी का इजहार। दिशान रजा से मुकदमात का रिकॉर्ड अपनी तहवील में ले लिया। पहले मैं केस की सारी फाइल देखूंगी, फिर तारीख दूंगी। रिकॉर्ड देखने के बाद हुक्म जारी करूंगी। सख्ती करनी पड़ी तो वो भी करूंगी। चीफ जस्टिस मिस आले नीलम के रिमार्क्स। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। हाई कोर्ट ने हमीदा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। मीनार पाकिस्तान पर दीनी, दावती और इस्लाही इज्तिमा की इजाज़त का मामला। महकमा दाखिला पंजाब ने ज़िला इंतज़ामिया की सिफारिश पर इज्तिमा की इजाज़त दे दी। जमात इस्लामी ने 21 से 23 नवंबर तक दीनी, दावती, इस्लाही इज्तिमा के लिए एनओसी की दरख्वास्त की थी। डीसी लाहौर की सिफारिश पर दफ़ा 144 में मखसूस नरमी का फैसला किया गया। मखसूस और महदूद इजाज़त को दफ़ा 144 के हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया गया। इज्तिमा की इजाज़त मुंतज़मीन के हल्फनामे की बुनियाद पर दी गई। रिकॉर्ड। बरकी का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर। AQI 275 तक जा पहुंचा। सदर के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 260, गुलबर्ग का AQI 258, इकबाल टाउन का 254 रिकॉर्ड। टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। महकमा मौसमियात के दिसंबर के आगाज में बादल बरसने की पेशगोई। भारत से स्मोकज़दा हवाएं लाहौर में दाखिल। बागों के शहर में आलूदगी शरह में इजाफा। हवा के नमूनों और सैटेलाइट डाटा से स्मोक की शिद्दत जांची जाने लगी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर इंसदाद स्मोक ऑपरेशन मजीद तेज। खुले ड्रेन्स और धुएं वाले पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। भट्टों, फैक्ट्रियों और वर्कशॉप्स में चेकिंग सख्त। शहरियों के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब बोली, स्मोक पर काबू पाने के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर है। पंजाब पुलिस की फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। 24 घंटों में 23 मुकदमा दर्ज। कानून शिकन गिरफ्तार। 556 अफराद को 13,54,000 के जुर्माने। 46 को वार्निंग जारी। हाजी का शाहराहों, इंडस्ट्री एरिया समेत दीगर मुकामात पर इंतज़ामी स्मोक क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई में ताख़ीर न की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ग्रीन लाहौर मंसूबा। शादरा से रायवंड 40 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के अतराफ ग्रीन जोन बनाया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने मंजूरी दे दी। टेंडर्स जल्द तलब किए जाएंगे। ग्रीन जोन प्रोजेक्ट 1.5 साल में मुकम्मल होगा। मुख्तलिफ मकामात पर 30 नए पार्क बनाए जाएंगे। पार्कों में तफरीह की मियारी सहूलियात फराहम की जाएंगी। MD PHA राजा मंसूर अहमद बोले, ग्रीन जोन से आलूदगी का खात्मा होगा।
डायरेक्टरेट जनरल वासा पंजाब में जदीद कंट्रोल रूम की तश्कील का फैसला। AI टेक्नोलॉजी से मॉनिटरिंग और शिकायत इंजराज का जदीद निज़ाम मुतारफ़ करवा दिया गया। सूबा भर में जारी वाटर एंड सैनिटेशन इक़दाम को मरकज़ी कंट्रोल रूम से मुंसलिक किया जाएगा। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक वासा एजेंसियों को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जा रहा है। सार्फिन की शिकायत को AI बेस सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा। शिकायत कुनिंदा की सहूलत के लिए जदीद कॉल सेंटर भी मुतारिफ करवाया जा रहा है। वज़ीर तामीरात पंजाब मलिक सुहेब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत इजलास मनसूबों की तामीराती प्रोग्रेस पर ब्रीफिंग। सुहेब बर्द की तामीराती काम को मज़ीद तेज़ करने और नाक़िस कारकर्दगी वाले ऑफिसर्स की लिस्ट बनाने की हिदायत। बोले नाक़िस कारकर्दगी और फंड्स का बर वक्त इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डिवीजन की सतह पर मनसूबों की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी जाए। सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। वज़ीर बल्दियात पंजाब दिलशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत अहम इजलास महकमा के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर बल्दियात का पंजाब डेवलपमेंट और मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के टाइम फ्रेमवर्क का ख्याल रखने पर जोर। दिलशान रफ़ीक बोले, ज़िलई देरपा तरक्की के प्रोग्राम के तहत 52 अरब 2800 स्कीमें मुकम्मल की जा रही हैं। SDG की ये तमाम स्कीमें गुज़िश्ता साल शुरू होने कर एक साल के अंदर मुकम्मल की गई हैं। 800 देहात में नकासियाब की स्कीमें मुकम्मल हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का MCA का दौरा। प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी और सीनियर फैकल्टी ने गवर्नर पंजाब का इस्तकबाल किया। सरदार सलीम हैदर ने NCA के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स देखे। गवर्नर पंजाब ने नेशनल आर्ट कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जारी NCA ट्रिब्यूनल भी देखा। गवर्नर पंजाब ने आर्टिस्टों के काम को सराहा। में खतरनाक हद तक इजाफा होने का खदशा। वज़ीर सेहत पंजाब की डेंगू से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, शहरी घरों में स्प्रे लाजिम करें और लोशन का इस्तेमाल करें। करेले और शलजम 100, भिंडी 180, शिमला मिर्च 350, मटर 300 रुपये फी किलो, केला 180 रुपये दर्जन, अनार 1250, सेब 470, पपीता 350, जापानी फल 320, मौसमी 280 और अमरूद 220 रुपये फी किलो में दस्तयाब। रुपये तक जा पहुंची। साफी गोश्त 550 रुपये किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 10 रुपये कमी। होलसेल रेट 329, परचून में 343 रुपये फी किलो। अंडों की कीमत नीचे ना सकी। दर्जन अंडे 344 रुपये में फरोख्त। पेटी 10,200 रुपये में दस्तयाब। हाईकोर्ट में ब्लॉक शनाख्ती कार्ड को बहाल करने की दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार को डिप्टी डायरेक्टर FIS से रजू करने की हिदायत। दरखास्त गुजार आयशा मुजाहिद ने अपने शोहर मुजाहिद अली का शनाख्ती कार्ड बहाल करने की दरखास्त की थी। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अफगानियों को वापस भेजना है। जस्टिस फारूक हैदर के रिमार्क्स। गुजरात तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की करप्शन और किकबैक्स वसूली के रेफरेंस में पेशरफ। मुलजिम सोहेल असगर ऐवान नैब का वादा माफ गवाह बन गया। अदालत ने नैब के गवाहान को शहादत रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी हाजिरी के लिए पेश हुए। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की जगह उनके प्लीडर पेश हुए। एहतसाब अदालत के जज राना मोहम्मद आरिफ ने केस की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब सवाल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के ज़ेर तमाम वीमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की तकरीब तकसीमी असना वज़ीर तजारत चौधरी शाफ़े हुसैन की बतौर मेहमान खास शिरकत। सूबाई वज़ीर ने तरबियत हासिल करने वाले ख़वातीन सरमायाकारों और मेंटोर्स में सर्टिफिकेट तकसीम किए। बोले, वज़ीर आला पंजाब ने ख़वातीन को बाअख्तर बनाने के लिए तारीख साज इक़दाम किए। ख़वातीन की तरक्की के लिए वज़ीर आला पंजाब ने खातिर ख़्वाह फंड्स फराहम किए। कारोबार के फ़रोग़ के लिए बिला सूद कर्ज दे रहे हैं। ब्रिटिश हाई कमीशन के वफ्द की चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौज़म इकबाल सिपरा से मुलाकात। मुआशी तरक्की और टैक्स कलेक्शन सिस्टम में इस्लाहात बारे तबादला ख्याल। ब्रिटिश हाई कमीशन के 3 रुकनी वफ्द ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के इस्लाहाती एजेंडे को सराहा। चेयरमैन PRA मौज़म इकबाल सिपरा कहते हैं
صارفین سے وصول شدہ ٹیکس کو سرکاری خزانے میں جمع نہ کروانے سے متعلق قوانین کو مزید سخت کیا جائے گا۔ فیلڈ انٹیلیجنس کو مزید بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کا نفاذ کر دیا گیا۔ لاہور چیمبر کی سیاست میں بڑی تبدیلی، چیمبر کے قدیمی گروپ فاؤنڈرز کی تنظیم نو کمان پہلی بار سیکنڈ ٹیئر کو منتقل کر دی گئی۔ ابراہیم شیخ چیئرمین، میاں مصباح الرحمان پیٹرن ان چیف منتخب، سابق صدور سے پہلی بار فاؤنڈر چیئرمین شپ کو متحرک کارکنان میں منتقل کیا گیا۔ انتخابات سے قبل فاؤنڈر گروپ کو بھرپور فعال کرنے کے لیے تنظیم نو کی گئی۔